बाद में हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया था कि द पीरियोडिक सिग्नल कैन बी एक्सेस बाय फोरियर सीरीज। तो उसमें लिए और एक कंडीशन है कि एवरी पावर सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल, बट एवरी पीरियोडिक सिग्नल इज नॉट अ पावर सिग्नल। इसीलिए जो भी पावर सिग्नल्स है उसका हम फोरियर सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स देर इज नो नीड टू डू सेपरेट check and Dirichlet's condition because power signal is applicable for Fourier series. Then other than power signal there is a one energy signal. Energy signal is always known as a non-periodic signals. ये बात कंफर्म है, ये आप हमेशा कोई भी सिग्नल्स हो, आपका सपोज पावर सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। पावर सिग्नल है तो आप आसानी से फोरियर सीरीज निकाल सकते हो, लेकिन एनर्जी है तो आप नहीं कर सकते। फिर आप कौन सा कर सकते हो, नाइदर एनर्जी एंड नॉर पावर। तो जो एनर्जी भी नहीं है और पावर भी नहीं है उस केस में आप फिर से इसको फोरियर सीरीज एनालिसिस। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू द हाउ वी कैन अचीव फोरियर series. So Fourier series can be represented by in three ways. The first one we call it trigonometric Fourier series. Second one is compact trigonometric Fourier series, and the third one is exponential Fourier series. So among which basically there are two types: trigonometric and exponential. Compact trigonometric Fourier series is a modified version of trigonometric Fourier series. Okay, so we'll see how it works, and as we know the basic standard functions of Fourier series. Now we'll continue with Fourier series. So trigonometric Fourier series को समझने के पहले आपको उसके कुछ कोएफिशिएंट्स रिगार्डिंग सिमेट्रिसिटी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो फोरियर सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दिस वन। इस फॉर्मूला में दिया है कि a0 with the dc component, an and bn are the ac components. So Fourier series is a combination of both ac plus dc component. Fourier series जब भी मैं आपको बार बार यूज करता हूँ, I need to analyze any signal. Analysis means what exactly meaning? It means that you need to know the value of coefficients. Once you know the value of coefficient, then by proper plotting you can analyze where signal will exist and where will not. एनालिसिस का मतलब कोई तर्क या कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। एनालिसिस का मीनिंग होता है कि हाउ आई कैन predict my next signal on the basis of right now what our inputs I have. So in every analysis there is some parameters. For example, if you are talking about the corona count from first phase to second phase or daily charts, then you require some parameters. What are that parameters? The number of counts, then the death ratio, then your recovery ratio of day to day. Then you can plot some graph. On the basis you can make comment whether we are really switching from first phase to second phase or we are getting very good recovery. So for analysis you require mathematical parameters. In this Fourier series, A0, An and Bn are the three most important parameters. जब भी कभी बात फोरियर सीरीज की होती है तो इसका नॉन टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि हमें A0, An, Bn की वैल्यू निकालना है। A0, An, Bn की वैल्यू निकालना है। अब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो भी एक फॉर्मूला है। A0 is equals to 1 by pi integration from minus pi to pi f of x. An is equals to b again same and Bn is equals to, इसको मैं मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूला। ओके, लिमिट चेंज होती है तो फॉर्मूला चेंज होता है। सो ये हमने अभी तक देखा है। So Fourier series can be generally is given as this formula, okay, where A0, An and Bn are the most important coefficients. कंटिन्यू करने के पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरा ऑडियो एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट? कोई भी एकदम बता दीजिए। यस सर। फाइन, थैंक यू। सो देखिए अभी थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम आप समझते हो ना तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फोरियर सीरीज। आपको निकालना क्या है, सिर्फ A0, An एंड Bn।
इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था और बाद में भी बताऊंगा। तो अल्टीमेटली मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के जरिए A0, AN एंड BN निकालना। अभी इसमें बताया एक पॉइंट है जो सेकंड नंबर की लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोरियर कोएफिशिएंट्स ऑफ सिग्नल्स विथ सिमेट्री। अभी सिमेट्री का क्या मीनिंग है? सिमेट्री आपको याद हो तो यूनिट नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल में देखा था, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैसे, वो देखिए। तो फिलहाल A0 क्या है, AN क्या है, BN क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। A0 इज नथिंग बट व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स हाफ वेव सिमेट्री। शांत करना, एक एक पॉइंट आता थोडं समजून घ्या आणि स्लाइड झाल्यावर त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्यायचा। A0 means half wave symmetry. If signal wave having half wave symmetry, then A0 will be a 0. परत एकदा सांगतो, शांतता नाही का। इफ सपोज प्रॉब्लम में हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन दी है तो वैल्यू ऑफ A0 विल बी 0, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लीज माय डियर स्टूडेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड, A0, AN, BN हर बार हर सिग्नल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर some hints which is available in the function. Out of 3 you can solve any one of them. There may be chances rest of the 2 coefficients will be 0, क्योंकि एक ही टाइम में सभी नहीं होता है। आपको 3 कैलकुलेट करना है, A0, AN, BN। लेकिन A0 कब 0 होता है, जब सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री को बिलोंग करती है। अभी हाफ वेव सिमेट्री को बिलोंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, A0 will be 0 when it belongs to half wave symmetry। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज AN? तो AN will be a 0। AN कब 0 होता है, when the given function belongs to odd symmetry। when AN will be 0 when it belongs to odd symmetry। Now third one you can predict, the word is BN। अब BN predict कर सकते हैं। So what is BN? BN will be a 0। BN is one of the coefficients। BN will be a 0 only when there is even symmetry in the functions। तो 3 कोएफिशिएंट्स है हमारे पास, A0, AN, BN, और 3 सिमेट्री हो सकती है। एक तो सिग्नल में हाफ वेव होती है, या तो फिर ऑड होती है, या तो फिर इवन होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात अभी बताना चाहता हूँ, तीनों भी कोएफिशिएंट कभी भी सिग्नल्स में नहीं होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि A0 भी है, AN भी है और BN भी है। जो AN है और BN है, दोनों में से एक तो रहता ही है। हाफ ऑड सिमेट्री रहेगा सिग्नल तो इवन नहीं रहता है, इवन होता है तो फिर ऑड नहीं होता है। मींस दोनों में से एक फंक्शंस होता है। लेकिन हाँ, दोनों में से हाफ वेव सिमेट्री हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो मिनिमम आपको दो कोएफिशिएंट सॉल्व, मिनिमम एक कोएफिशिएंट सॉल्व करना है, मैक्सिमम आप दो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, A0 is a half wave symmetry, AN is a odd symmetry and BN is a even symmetry। ये समझते हैं। अभी हम वन बाय वन एक प्रॉब्लम एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है और ये कब शुरू होता है। सबसे पहले हम लर्न करते हैं इवन सिमेट्री। मुझे बताइए, जब सिग्नल इवन सिमेट्री हो तो कौन सा कोएफिशिएंट जीरो होता है? BN। वेरी गुड, BN विल बी जीरो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इवन सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि इसमें x ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू x ऑफ टी होती है। आपको याद हो तो यूनिट नंबर 1 टाइप्स ऑफ सिग्नल में हमने ये लर्न किया था, इवन एंड ऑड सिग्नल्स में इसको ही सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक कहा जाता है। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये नेक्स्ट लेक्चर भी हम यूज करेंगे, जो अभी हम कर रहे हैं। इवन सिमेट्री मतलब x ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू x ऑफ टी। चलो, x ऑफ टी क्या है, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है। x ऑफ माइनस टी क्या है, इसका रिवर्स ऑपरेशन है, क्योंकि हमें बेसिक सिग्नल्स में रिवर्सल भी सीखा। रिवर्सल में क्या करते हैं, हम टी को चेंज करते हैं माइनस टी से। तो हम दो सेपरेट निकालते हैं, एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी। जब ये दोनों ही सेम है तो हम कहते हैं इसको इवन सिमेट्री। एग्जांपल के जरिए लर्न करते हैं।
सपोज एक वेव है हमारे पास, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में एक बात हमेशा समझ लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल में सिमेट्री होती है तो ये इवन या ऑड बनती है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल की सिमेट्री देखी जाए तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हमेशा इवन या ऑड बताती है, और जो सॉरी वर्टिकल जो सिमेट्री है, वर्टिकल जो सिमेट्री है ये हमेशा इवन या ऑड बताएंगे आपको। वर्टिकल आपको इवन एंड ऑड बताएंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल ऑलवेज टेल यू अबाउट हाफ वेव सिमेट्री। तो इवन एंड ऑड सिमेट्री विल बी गिवन बाय वर्टिकल एंड हाफ वेव सिमेट्री विल बी गिवन बाय हॉरिजॉन्टल। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ, बातों में थोड़ा सा एक चेंज हो गया था। वर्टिकल इवन एंड ऑड बताती है और हॉरिजॉन्टल हाफ वेव बताती है। चलो, इवन सिमेट्री के लिए कंडीशन हमें पता है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो सबसे पहले हम एक्स ऑफ टी प्लॉट करते हैं। तो दिस इज व्हाट योर एक्स ऑफ टी। अभी ये एक्स ऑफ टी है और इसका एक्स ऑफ माइनस टी कैसे रहेगा? यदि ये क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस आपका सेंट्रल एक्सिस है और इसका मिरर इमेज निकालते हैं और एक साइड दूसरे साइड के साथ ओवरलैप करते हैं, तो दोनों ही सेम रहेंगी, ग्राफिकली भी और मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी। When such a condition occurred, x of minus t is equals to x of t via vertical axis, then such a function is called as even symmetry. इसी को इवन सिमेट्री कहा जाता है। और जब भी इवन सिमेट्री होती है तो कोएफिशिएंट bn will be always 0. कोएफिशिएंट bn will be always 0. अभी मैं कोएफिशिएंट an एंड a0 के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट पे कंसंट्रेट करूंगा कि bn कब 0 होता है। bn 0 तब होता है when function belongs to even symmetry, that is x of t is equals to x of minus t. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे ऑर्डर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी ऑड सिमेट्री। ऑड सिमेट्री में भी हमको कंडीशंस पता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन टू आइडेंटिफाई द इट इज ऑड सिमेट्री और नॉट। तो इस फंक्शन में ऑड सिमेट्री में कंडीशन दी जाती है कि x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। ये सबको पता है, हमने बार बार इसको लर्न किया है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से। एक वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस विल टेल यू वेदर इट इज इवन और ऑड। तो इसके पहले हम ड्रॉ करते हैं ओरिजिनल एक्स ऑफ टी। तो दिस इज व्हाट माय ओरिजिनल एक्स ऑफ टी। अभी ये इवन कब होता है और ऑड कब होता है ये आपको पता है। इवन होता है तब जब कंडीशन x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी होता है, और ऑड तब होती है जब x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। माइनस की वजह से सिग्नल विल बी दिस। अब सिग्नल नीचे आया है, सिग्नल नीचे आया है, तो इस केस में आप इसको 180 फेज शिफ्ट से ओवरलैप करते हो तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल्स पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव, तो स्विचिंग इज देयर। So what we understand, the given function belongs to odd symmetry, and when function belongs to odd symmetry, your coefficient an will be a 0. Your coefficient an will be a 0. अभी इसको रिवर्स अप्रोच से लर्न करो। रिवर्स अप्रोच से मीन्स व्हाट? an कब 0 होता है? an will be 0 only when it belongs to odd symmetry. तो अभी तीनों कोएफिशिएंट में से मैंने आपको दो कोएफिशिएंट्स बता दिए कि ये कब 0 होता है और कब नहीं। Hope so you understand the when bn will be a 0 and when an will be a 0. Now the major question is regarding what about a0. an bn होने के बाद अभी a0 पता होना चाहिए। a0 पता होने के लिए अभी हम देखते हैं हाफ वेव सिमेट्री। और हाफ वेव सिमेट्री जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको आपके वर्टिकल एक्सिस के जरिए नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू पता चलता है कि सिग्नल गिवन फंक्शन इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। देखिए अभी एक फंक्शन, इसमें जो हॉरिजॉन्टल है इसकी सिमेट्री होती है तो सिग्नल इज हाफ वेव सिमेट्री। फॉर एग्जांपल
दिस फंक्शन जो आपको ओरिजिनल है, और हाफ वेव सिमेट्री में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसी के नीचे सपोज वेवफॉर्म आती है, उसी के नीचे सपोज वेवफॉर्म आती है, मतलब दिस इज व्हाट माय सेंटर, इसके नीचे और ऊपर आती है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। दिस इज नोन एज हाफ वेव सिमेट्री। और जब फंक्शन हाफ वेव सिमेट्री होता है, जब फंक्शन हाफ वेव सिमेट्री होता है, तब a0 will be a 0, तब a0 will be a 0। फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर यही तो एग्जांपल हमने ऑड सिमेट्री के लिए भी देखा। यस, ऑड सिमेट्री में के लिए भी ये सिग्नल अलाउ है, बिकॉज इसमें भी आप ऑड सिमेट्री भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऑड के साथ हाफ वेव हो सकता है, इवन के साथ भी हाफ वेव हो सकता है, लेकिन इवन और ऑड दोनों साथ में नहीं हो सकते, आइदर इवन और ऑड विल बी। ये हो गया कंडीशन व्हेन a0 इज इक्वल्स टू 0। फिर द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, व्हेन a0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कंडीशन कि जब, चलो हाफ वेव सिमेट्री है ये समझ में आ गया, लेकिन हाफ वेव सिमेट्री नहीं है ये कैसे समझेगा। बेस्ट एग्जांपल इसका है हाफ वेव सिमेट्री। दिस इज ओरिजिनल इनपुट सिग्नल x ऑफ t, इस केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके नीचे वेवफॉर्म नहीं है, मींस देयर इज नो सेंट्रल एक्सिस फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड, देन सच अ सिग्नल जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन पे है, सेकंड साइड नहीं है, सच अ कंडीशन इज फॉर नो हाफ वेव सिमेट्री। और जब सिमेट्री नहीं होती है, देन a0 इज इक्वल्स टू a0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, a0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया तीन कंडीशंस जिसके जरिए हम अभी आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो तीन कंडीशंस कौन से एक बार देख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका फंक्शंस, आपको तीन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है, a0, an and bn। सो a0 इज अ हाफ वेव सिमेट्री, यदि हाफ वेव सिमेट्री होती है तो फंक्शन विल बी 0। यदि इवन सिमेट्री है तो फंक्शन bn विल बी 0। ऑड सिमेट्री है तो फंक्शन an will be a 0 and the half wave symmetry है तो a0 will be 0। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, ये 0 होने के बाद करना क्या है। आपके पास तो तीन कोएफिशिएंट्स है, आपको करना क्या है। इसका मीनिंग ये है कि सपोज ये तीन में से दो कोएफिशिएंट 0 है, फॉर एग्जांपल दो कोएफिशिएंट 0 है, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है 0 उसको आपको सॉल्व करना है। ये हम हमारा कैलकुलेशन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। Instead of calculating all these three coefficient an, bn and a0 और सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार ये तो फंक्शन 0 है, तो बेटर वे बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट एनी कोएफिशिएंट फर्स्ट नीड टू मेक क्लियर yes whether this function is 0 or not, so that will optimize your time। that is the beauty of mathematical equations। okay, fine। once we identify these functions, now we'll take some examples one by one। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर फोरियर सीरीज, अभी इवन सिमेट्री की कुछ एग्जांपल्स ले लिए हमने, एक वेवफॉर्म देखी, अभी एग्जांपल्स। इवन सिमेट्री की कंडीशंस है कि x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ टी, जो हमें पता है। अभी एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक्चुअली दो एग्जांपल्स है। द फर्स्ट एग्जांपल इज x ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी रेज़ टू द 4 प्लस टी रेज़ टू द पावर 6। Now if you see the given x of t, here it is, and if I do change some the sign of t, so as we know, minus t square will be t square, minus t raised to the 4 will be again the t raised to the 4, minus t raised to the power 6 will be again the same. So if I do change the sign of minus t, means x of minus t, still I will get the same equation like x of t. So the first example is conclude that it belongs to even symmetry. Then next, second example. In second example, as we know, the function is a cos omega 0 t. And we know cos function is what? Cos minus theta is equals to cos theta.
So again, cos function is also belongs to even functions. So the given equations and examples belongs to even symmetry. That's why the coefficient कौन सा जीरो रहेगा? Yes, coefficient BL. bn will be a zero. Good. Now, what about the rest of the two? The rest of the two में a0 will not equal to 0 and an will not equal to 0. तो यदि इस प्रॉब्लम का मुझे फोरियर सीरीज एनालिसिस करना है तो मैं तीन कोएफिशिएंट सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं दो कैलकुलेट करूंगा. विच वन? a0 and an. Why it is so? Because a0 and an both are non-zero. And when it is non-zero, then I need to know what is the exact value of an and bn. Once I identify the value of a0 and an, then I'll put this value into the equation, generalized equation, and by which I'll calculate sinusoidal functions. एक लक्षात घ्या. What is the role of Fourier series? Fourier series इसका डेफिनेशन हमने बताया था. एनी पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल, कोई भी पीरियोडिक जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है will express into sin and cosine. So Fourier series ultimately output will give in terms of sin and cosine. This is what the strategy to calculate any coefficient. First, identify type of symmetry, then make sure. We'll take some second example. For now, ये example है आपका odd symmetry, and we know the condition. The condition is x of minus is equal to x of minus x of t. The best example is x of sin omega 0 because sin minus theta is equal to minus sin theta. So condition will is given just like this. Okay. So sin theta is what belongs to odd symmetry. When it is odd symmetry, the coefficient my an will be 0. Why? Because sin function belongs to odd symmetry, and for odd symmetry an will be 0. So what about the next two condition? We consider a0 is 0 and bn is 0. हाँ, a0 के बारे में आपको एक सवाल हो सकता है कि साइन फंक्शन में भी नीचे भी वेव होती है और पॉजिटिव भी वेव होती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन अभी हम सिर्फ उस पॉजिटिव नोट पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट 0 टू फर्स्ट आते हैं. इसीलिए हमने a0 को इस केस में नॉन जीरो कंसिडर किया. हम पॉजिटिव एंटी नोड एंड नेगेटिव एंटी नोड कंसिडर करते हैं, देन a0 विल बी अगेन 0. This is what a second basic example for identification. Now, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. अभी हाफ वेव सिमेट्री जीरो कब होती है और जीरो कब नहीं होती है? फॉर हाफ वेव सिमेट्री a0 इज इक्वल टू 0. ये तो आपको पता ही है. चलो, अभी दिया है प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, और इस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना है a0, an एंड bn. सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले कभी भी फोरियर सीरीज में प्रॉब्लम दिया तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है एनी पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल. तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? आंसर इज यस, सिग्नल इज पीरियोडिक बिकॉज सिग्नल इज रिपीटिंग आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. ये आप बस देख भी सकते 0 to t0, ये इसका फंडामेंटल टाइम है, उसके बाद सिग्नल फिर से रिपीट हो रहा है, तो सिग्नल पीरियोडिक है. फर्स्ट कंडीशन अचीव्ड. सेकंड कंडीशन इज व्हाट? क्या ये नॉन साइनोसॉइडल है? यस, इट इज स्क्वायर वेव, तो ये नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल भी है. ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अभी जो अपने अंकल थे मिस्टर डिरिचलेट, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तीन अच्छी बातें बताई. उन अंकल का कहना था कि सिग्नल्स में वन पीरियड में फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा होनी चाहिए, तो ये भी इसमें अवेलेबल है, फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा भी है. सेकेंड कंडीशन थी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, चलो वो भी है. और थर्ड कंडीशन थी इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, चलो वो भी है. The given function is applicable for periodic, non-sinusoidal, and 1, 2, and 3 condition is satisfied given by Dirichlet. ये पांचों कंडीशन होने के बाद now I ask to you, if I want to analyze this given wave by using trigonometric Fourier series, can you make comment on three coefficients a0, an, and bn will be 0 or not? और when it will be 0 and what is the exact value of a0, an and bn. मतलब 0 कौन सा रहेगा, नॉन 0 कौन सा रहेगा, बिकॉज यू नो हाफ वेव सिमेट्री, यू नो इवन सिमेट्री, यू नो ऑड सिमेट्री. नाउ टेल मी
which one will be zero and which will not? सबसे पहले मुझे बताइए द गिवन फंक्शन कौन सी सिमेट्री को बिलोंग करता है, हाफ, इवन, ऑड? half wave symmetry. हाफ वेव सिमेट्री, वेरी गुड। और इवन और ऑड में? इवन है कि ऑड है? Even. इवन, ओके। और कोई? इवन सिमेट्री वर्टिकल एक्सिस के जरिए होता है, इवन सिमेट्री वर्टिकल एक्सिस के थ्रू होती है, इवन एंड ऑड। और हाफ वेव सिमेट्री हॉरिजॉन्टल होती है। तो जैसे इन्होंने कहा हाफ वेव सिमेट्री बिलोंग करता है, ओके फाइन। उन्होंने कहा कि ये इवन सिमेट्री है। मेरा क्वेश्चन आपसे फिर से, बता सकते हैं आप ये इवन सिमेट्री है और सिमेट्री? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इवन का बरं? इवन का ते समजून सांगा. सो वर्टिकली दोन्ही साइडनी ते इक्वली डिवाइड होता है आणि इक्वल नाही आहे पण हॉरिझॉन्टली ऑड आहे कारण की नंबर ऑफ लूप जे आहेत ते डिफरंट आहे दोन्ही साइडनी. ना तुम्ही असं नका समजू, हे 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 नका मोजू इथे किती वेव्ह आहे हे तुम्ही काढलंय माझ्या मनाने. तुम्ही हेच बघा दिस पॉइंट. सी दोन्ही साइडने वेव्ह आहे म्हणजे हाफ वेव्ह सिमेट्री. इथून याची वेव्ह इथून सुरुवात होत आहे आणि हीच वेव्ह खालून होत आहे, म्हणजे दिस इज व्हॉट फॉर मी पॉझिटिव्ह and this is what a negative. Sir, odd symmetry. Yes, so this function is odd symmetry. An is equal to 0. सबसे पहले a0 is equal to 0 कहा बरं? Because it is half wave symmetry. तो a0 0 आहे कहा बरं? Because of half wave symmetry. an will be 0. Why? Because odd symmetry. Odd symmetry असेल. जर हा सिग्नल असा असता, means this is what here, this is my this signal means original input signal and this is what हा असा सिग्नल असता तर हा इव्हन असता, पण सिग्नल तसा नाही आहे. सिग्नल कसा दिला यांनी? ओरिजिनल सिग्नल पॉझिटिव्ह आहे आणि हा सिग्नल खाली दिलेला है, तो हाँ ऐसा अपोजिट है. तो अपोजिट होने की वजह से अभी सिग्नल ऑड सिमेट्री होते हैं. कंडिशन क्या होती है? x ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस x ऑफ. तसं असल्यामुळे सिग्नल इज an इज इक्वल टू 0. मग हा जर ऑड सिमेट्री आहे तर an 0 आहे, म्हणजे हा इवन सिमेट्री नाही आहे. याचा अर्थ bn इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स bn इज नॉट इक्वल टू 0. समजलं का की हे ऑड सिमेट्री का आहे? कोणाला नसेल समजलं तुम्ही परत सांगा. सगळ्यांना समजलं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट आंसर बताइए. पहले सब्जेक्ट बताइए फिर वैल्यूज बताना. कोणी पण बोलायचं, बिंदास बोला. माइक केसरी Even इवन symmetry. बरं ठीक आहे. ऑड सिमेट्री आहे का? Symmetry. इवन आहे, ऍग्री. ऑड आहे का? No. हाफ वेव आहे का? Yes or no? No, sir. No. Yes, So sir. what will be the value of an? No, sir. No, sir. A0 will be a Not equal to 0. why it is? Because ये हाफ वेव नहीं है. चलो उसके बाद ऑड का an is not equal to 0 because ये भी ऑड सिमेट्री नहीं है, ये सिर्फ इवन सिमेट्री है. और इवन सिमेट्री के लिए bn will be a 0. इवन सिमेट्री के लिए सिर्फ bn 0 होता है. तो जब ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में आया है, जो लास्ट प्रॉब्लम लिया तो वो भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको तीनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ bn को 0 कर दीजिए, 2 सॉल्व कर दीजिए. और लास्ट केस में तो आपको a0 एंड an दोनों ही 0 है. मतलब आप देखिए आपका कितना टाइम बचता है. सिंपली जस्ट कैलकुलेट bn. आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में सॉल्यूशन में लिख लीजिए, सिंस द गिवन प्रॉब्लम बिलोंग्स टू half wave symmetry and odd symmetry, therefore the coefficient a0 and an will be 0, so we'll go for bn. That's it. No need to calculate it or the rest of the two coefficients once you declare it. Very good. This symmetry identify करना इक्वल होता है. Hmm? Symmetry identify करना. हाँ, इस वेवफॉर्म में क्या है?
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके नीचे भी वेवफॉर्म होती है, सिमेट्री है, तो इसको हम हाफ वेव सिमेट्री कहते हैं। हाफ वेव सिमेट्री में A0 ये 0 होता है, हाफ वेव सिमेट्री में A0 0 होता है। उसके बाद जो आप ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसकी इस साइड की इमेज और इस साइड की इमेज चेक करना है। ये एक साइड जैसे ही है, मतलब ओवरलैप करने के बाद, जैसे हम रजिस्टर को कैसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने बीच में से जब फोल्ड करते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ये ओवरलैप होते हैं प्रॉपरली तो सिग्नल इवन। ओवरलैप होते वक्त एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो सिग्नल इज ऑड। इसमें आप देखो, इसको वेवफॉर्म को ओवरलैप करते तो ये पॉजिटिव साइड रहेगी एंड दिस वन इज ऑन नेगेटिव साइड, इसीलिए ये ऑड सिमेट्री है। और ऑड सिमेट्री में an 0 होता है। दिस इज ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट इज, इसका भी आपने बताया, फिर इसका बताइए। E1 E1 symmetry. even symmetry. कौन से कोएफिशिएंट 0 रहेंगे फिर? Bn. And the rest of the two? Not equal to 0. Very good, very good, very good. Good. इसका बताइए। Even symmetry, sir. Even symmetry. Good. E1. E1 Even symmetry. Even symmetry. E1. odd Half wave E1 or half odd Half wave wave. Odd symmetry. Values बताइए। A0 will be a 0. A0 0 an AN 0. not AN Not zero. equal to 0. Bn not equal to 0. n is not equal to 0. Good. sir, half wave Half wave odd symmetry. Half symmetry. wave and odd half wave symmetry. E1 Half wave symmetry good means A0 is 0. Odd. E1 An equal to 0. E1 An equal to 0. En not equal to 0. Good. Bn does not equal to. The way is not. Means right now you are in a position to make comment whether this function belongs to or not, and once we know, then अभी आपको simple values calculate करना है. Simply इसके values calculate. This is what the just introductory part to your trigonometric Fourier series. इसके बाद इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स दे रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए एक पूरा लेक्चर लगता है, लेकिन मैंने इसकी कुछ पीपीटी बनी भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सपोज दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले फाइंड, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, बीपी लाठी का क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स x of t इन द गिवन फंक्शन। तो अभी इस फंक्शन में आपको जब सॉल्व करते हो तो कुछ एडिशनल स्टेप्स भी पता होने चाहिए। तो जब भी ये सिग्नल्स होता है तो ये पहले चेक करो कि सिग्नल्स पीरियोडिक है या नहीं। सिग्नल्स पीरियोडिक है तो कितना पीरियोडिक टाइम है, मतलब सिग्नल कितना पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसका फंडामेंटल टाइम कैलकुलेट करने दो। कैलकुलेट नहीं मतलब आपको देखने से पता चल जाता है। क्या आप बता सकते हैं इसका फंडामेंटल टाइम कितना है? फंडामेंटल टाइम मतलब उस टाइम के बाद सिग्नल फिर से यस T0. 30 नाही सिग्नल कुठून सुरू होते आणि कुठे एंड होते, परत तिथून सुरू होतं, वो वैल्यू मुझे बताइए अभी जो दिया फंक्शन 01 0 1 ओके, लेकिन वो नीचे भी आ रहा है ना। तो एक देखिए सिग्नल पीरियोडिक है तो एक वेव बताइए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ कि वो सिग्नल बार बार रिपीट हो रहा है। -1 to 1 -1 to 3. वेरी गुड, -1 to 3, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल टाइम, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल टाइम, दिस इज द सिग्नल्स, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है -1 to 3। फिर इसके बाद फिर से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग है कि इस सिग्नल्स का जो एक्चुअल फंडामेंटल टाइम है वो है 4।
द पीरियड t ऑफ द गिवन सिग्नल इज 4। ये यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो फॉर वन पीरियड हम t इज कंसिडर एज ए -1 to 3, -1 से 3 तक हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? t हो गया फंडामेंटल टाइम। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा 0। ओमेगा 0 का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ। हमारे पास t है तो 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी की वैल्यू कितनी है? 4। सो पुट इट हियर 2 पाई बाय 4। 2 pi by 4 means what? Just put it in pi by 2. So now in formula, omega 0 is replaced by pi by 2. Now where we use omega 0? Omega 0 use किया जाता है फोरियर सीरीज के फॉर्मूले, जहां पे लिखा जाता है a0 प्लस समेशन an cos ओमेगा 0 t प्लस bn sin ओमेगा 0 t। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है कि हमने हाउ टू आइडेंटिफाई हाफ वेव, इवन एंड ऑड सिमेट्री देखा है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम का स्टार्ट जो हम कल लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि कोई भी नॉन साइनसॉइडल सिग्नल बाय यूजिंग फोरियर सीरीज कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।